Good morning, everyone. Class 3, welcome to your SST class. Today's topic is our country, India. Students, today we are going to read about our country, India. Okay? Now, in this chapter, we will read about central government, state government, and union territories. Okay? Chapter 7, our country, India. So, let's read. Put your finger with me in the line. India is a big country. It is 7th largest country in the world. It is also the second most populous country in the world after China. More than 120 crore people live in India. The capital of India is New Delhi. India is a big country. All of you know, आप इस देश में रहते हैं? Yes. So, India is a big country and it is the 7th largest country in the world. It is also second most populous, means most famous country in the world after China. More than 120 crore people live in India. The capital of India, New Delhi. और इंडिया की कैपिटल कौन सी है? न्यू दिल्ली है. ठीक है. इंडिया इज वेरी बिग कंट्री. भारत बहुत बड़ा देश है और ये संसार का 7वां बड़ा देश है. इट इज़ ऑल्सो द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना. और ये चीन के बाद दूसरा बड़ा पॉपुलेटेड कंट्री है. और यहाँ पे मोर देन 120 करोड़ पीपल लिव करते रहते हैं. और इसकी कैपिटल कौन सी है? यस, न्यू दिल्ली. सो स्टूडेंट, आवर कंट्री हैज़ two type of government, the central government and the state government. There are two type of government, central government and state government. Both work jointly to ensure the welfare people of the country, and both are state government and central government. Both work jointly to ensure welfare of the people of the country. वो देश के लोगों के लिए वेलफेयर के लिए वर्क करते हैं. मीन्स उनकी नीड्स, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं दोनों मिलकर. सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन 15 August 1947 we got freedom. All of you know India became free on 15 August 1947. After independence we got the right to choose our government. और इंडिपेंडेंस के बाद हमें ये राइट हो गया कि हम अपनी गवर्नमेंट चूज कर सकें. The government look after the needs, welfare and safety of the country and of its people. The government, state government, otherwise the central government look after the needs. हमारी needs को और हमारी सेफ्टी को, हमारे वेलफेयर के लिए ये दोनों गवर्नमेंट वर्क करती हैं. ओके, इससे हमें कोई प्रॉब्लम ना हो. ओके स्टूडेंट, नाउ we elect people to make the central government. The offices of central government are in New Delhi, the capital of India. We elect people to make the central government. Means we elect people. हम उन लोगों को चूज करते हैं जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट मेक करते हैं. The offices of central government are in New Delhi. सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस कहाँ हैं? Yes, New Delhi, our capital. The president, the vice president, and the prime minister have their offices in the capital city. The president, vice president and our prime minister have their offices in the capital of city, means Delhi. Delhi में इनके offices हैं. It is difficult for the central government to solve all the problems. It is very difficult that the central government to solve all the problems such a big country like our India. Okay, हमारा देश कैसा है? Very big. तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकती. देयरफॉर द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट और स्टेट. इसलिए हमारे कंट्री को डिवाइड किया गया है छोटे छोटे पार्ट्स में, लाइक स्टेट. इन्हें स्टेट्स कहा जाता है. एवरी स्टेट हैज ओन गवर्नमेंट नोन एज द स्टेट गवर्नमेंट. और हर स्टेट में की गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट बोला जाता है. मीन्स हर स्टेट की गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट नेम से जानी जाती है. दिस लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट्स. तो क्या करती है? उस स्टेट्स के प्रॉब्लम्स को, नीड्स को सॉल्व करती है. मीन्स स्टेट गवर्नमेंट. ओके, व्हाट इज स्टेट गवर्नमेंट?
there are 28 states in India. There are 28 states in India, and every state has its own capital where government chief minister, other state ministers, and the senior officers have their offices. Student, there are 28 states in India, means भारत में 28 states हैं, and every state has its own capital. और हर स्टेट की अपनी कैपिटल है. जैसे इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली है, उसी तरह से यूपी की कैपिटल लखनऊ, वेयर इट्स जहाँ पे वेयर इट्स गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और अदर स्टेट मिनिस्टर्स एंड सीनियर ऑफिसर्स के ऑफिसेस हैं. मीन्स वहाँ पे कैपिटल में, हर स्टेट की कैपिटल्स में चीफ मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर्स और सीनियर ऑफिसर्स के ऑफिसेस होते हैं. द सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्प द स्टेट गवर्नमेंट व्हेन इट रिक्वायर्ड. सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्प करती है स्टेट गवर्नमेंट की जब उसे रिक्वायर होती है. द स्टेट आर फर्दर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट. फिर क्या होता है? यस स्टूडेंट, स्टेट आगे चल के फिर डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड होते हैं. जैसे हमारा बिग कंट्री था, तो कंट्री को फिर हमने स्टेट में डिवाइड किया. अब हम स्टेट को डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड करेंगे जिससे कि हमारा वर्क इजी हो जाए. ओके, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लुक आफ्टर द नीड एंड द सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट. फिर डिस्ट्रिक्ट का एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है जो कि वहाँ उस डिस्ट्रिक्ट की प्रॉब्लम्स को, नीड्स को सॉल्व करता है. ओके, ये चेन इसलिए बनती है स्टूडेंट्स, जिससे कि हमारी जो नीड्स हैं, हमारी जो प्रॉब्लम है, वो इजी वे में सॉल्व हो सकें. क्योंकि एज यू ऑल नो दैट आवर कंट्री इज़ वेरी बिग. हमारी कंट्री है बहुत बिग है, इसलिए उसको सॉर्ट आउट करके हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उसकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमने ये डिवाइड किया है. ओके, तो फर्स्ट यू डिवाइड सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. ओके, एंड स्टेट ऑल्सो फर्दर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स. ओके, नाउ स्टूडेंट look, state of India and their capital. As you all know, 28 states in the country and their capitals. Student, union territories, there are 9 smaller parts directly controlled by the central government. Central government 9 smaller part को direct control करती है. They are known as the union territories. और इन्हीं को union territories के रूप में जाना जाता है. There are 9 union territories in our country, including the national capital territory of Delhi. इसमें कि दिल्ली भी इंक्लूड है. जो 9 यूनियन टेरिटरीज है उसमें दिल्ली भी इंक्लूड है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ थैंक यू. रीड योरसेल्फ.